हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियो सेकंड टॉपिक सर्जरी का रैपिड डिवीजन 6 होगा। इसका नेम है वुंड हीलिंग, टिश्यू रिपेयर एंड स्कार। सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड को 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। क्लास 1 ऑल्सो नोन एज क्लीन वुंड। क्लास 1 इंक्लूड्स इन्फेक्टिव ऑपरेटिव वुंड्स विदाउट इन्फ्लेमेशन, वुंड्स विदाउट इन्फ्लेमेशन। ओके, लाइक क्लास 1 में आता है नो इन्फेक्शन, नो इन्फ्लेमेशन। Respiratory, alimentary, genital or urinary tract not entered. Okay, these wounds are closed wounds primarily. अगर इसमें ड्रेनेज करना भी पड़ा तो हम लोग क्लोज ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है क्लास 1 वुंड का एग्जाम्पल है मिट जा। सो एम फॉर मेस्टेक्टमी, आई फॉर इंग्यूनल हर्निया ऑपरेशन, टी फॉर थायराइडेक्टमी, रिमूव ड्रेन करते हैं ना थायराइडेक्टमी में। J for joint replacement, F for abdominal aortic aneurysm repair. क्लास 1 हो गया। क्लास 1 में also known as clean wound, no inflammation, no infection, respiratory, alimentary, genital, urinary tract not entered. wounds कैसा होता है? क्लोज होता है। और ड्रेनेज कैसे करते हैं? क्लोज ड्रेनेज करते हैं। एग्जाम्पल है मिर्जा, मेस्टेक्टमी, इंग्यूनल हर्निया, थायराइडेक्टमी। रोमोवैक ड्रेन करते हैं मेस्टेक्टमी में भी रोमोवैक ड्रेन, थायराइडेक्टमी में भी रोमोवैक ड्रेन। J फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, A फॉर एब्डोमिनल एयर एन्यूरिज्म। क्लास 2 also known as clean contaminated wound includes operative wound in which respiratory tract, GIT and urinary tract are entered under controlled conditions without unusual contamination. एग्जाम्पल है क्लास 2 का CC cholecystectomy, CBD exploration, common bile duct. Okay, CBD is common bile duct exploration. Elective GI surgery, elective colonic resection and elective gastrectomy. Class 2 wound, clean contaminated wound, respiratory tract, GIT and urinary tract are entered under controlled condition without unusual contamination. Examples of class 2 wound are CC cholecystectomy, common bile duct exploration, elective GI surgery, elective colonic resection, elective gastrectomy. Class 3 wound also known as contaminated wound. ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? ओपन फेस एक्सीडेंटल वुंड्स, एक्सीडेंटल वुंड्स जो कि ओपन और फेस क्लास 3 में आता है। मेजर ब्रेक्स इन स्टेराइल टेक्निक्स और ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम GIT, major breaks in sterile techniques or gross spillage from GIT. Incision in which acute non-purulent inflammation encountered, no pus. Okay, क्लास 3 में पस नहीं फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है एज ओहो, एपेंडिकुलर परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन, इंटरेक्टमी ड्यूरिंग बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर, ह्यूमन बाइट, ओपन कार्डियक मसाज। ओपन कार्डियक मसाज एन एग्जाम्पल ऑफ class 3. Class 3 contaminated wound includes open face accidental wounds, operation with major break in sterile techniques or gross spillage from GIT. ठीक है, नॉन पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन लाइक नो पस फॉर्म। एग्जाम्पल है एज ओहो, एपेंडिकुलर परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन। E for enterectomy during bowel obstruction, O for open fracture, H for human bite, O for open cardiac massage. Class 4 wounds are also known as dirty wounds. Okay, it includes old traumatic wound with retained devitalized tissue, wound with clinical infection or perforated viscera with a high degree of contamination. हाई डिग्री कंटामिनेशन होता है। ठीक है, क्लास 4 wound में organism causes post-operative infection is already present in the wound before the operation, associated with severe inflammation and pus purulent. Okay, पस फॉर्म देखने को मिलेगा। क्लास 4 वुंड्स डर्टी वुंड्स होता है, ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड विथ रिटेंट डेविटलाइज्ड टिश्यू, हाई डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। ओके, ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉजेज पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वुंड। ठीक है, पुरुलेंट होता है पस फॉर्मिंग। एग्जाम्पल है क्लास 4 वुंड का PPNF। एग्जाम्पल क्या क्या है? PPNF। ओके,
perforated diverticulitis, presence of frank pus, okay. And for necrotizing soft tissue infection, F for fecal peritonitis. क्लास 4 का एग्जाम्पल क्या है? PPNF, perforated diverticulitis, presence of frank pus, and for necrotizing soft tissue infection, F for fecal peritonitis. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और क्या है? गिवन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, ओके। अगर क्लीन वुंड है क्लास 1 है ना, तो 5% रिस्क है, कुछ हम नहीं करते हैं, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस रिक्वायर्ड। क्लास 1 वुंड में नो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस रिक्वायर्ड। क्लास 2 वुंड में क्या है? क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, इसमें यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। क्लास 2 यूजुअली कंटामिनेटेड, like 10% रिस्क यूजुअली रिक्वायर्ड। क्लास 3 20 to 30% रिस्क होता है, ऑलवेज रिक्वायर्ड। क्लास 4 30 to 40% रिस्क, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नॉट प्रोफाइलैक्सिस, ओके। तो क्लास 1 में नॉट रिक्वायर्ड, क्लास 2 में यूजुअली रिक्वायर्ड, क्लास 3 ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्लास 4 ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नॉट प्रोफाइलैक्सिस। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट। Chronic wound doesn't heal within 3 months. Chronic wound doesn't heal within 3 months. Delay occur in inflammation phase of wound healing. Chronic wound में inflammatory phase में डिले होता है। एग्जाम्पल प्रेशर अल्सर सोर, ओके। डिग्लविंग इंजरी, डिग्लविंग इंजरी में क्या है? एवल्जन इंजरी है ना। डिग्लविंग इंजरी में क्या है? एवल्जन इंजरी, स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट आर स्ट्रिप्ड, स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट स्ट्रिप्ड हो गया है by avulsion from underlying fascia, okay. Leaves, neuromuscular structure, tendons and bones exposed, neuromuscular structure, tendons and bones दिख रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों चीज़ दिखेंगे। ये डिग्लविंग इंजरी है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? इफ़ प्रेशर इज ग्रेटर दैन 30 mmHg, प्रेशर कितना होना चाहिए? 30 mmHg से ज़्यादा। फिर क्या होगा? इम्पेयर्ड परफ्यूजन, इस्कीमिया, पेन। कंपार्टमेंट सिंड्रोम typically seen in closed lower limb injury due to collection of blood. कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? प्रेशर ग्रेटर दैन 30 mmHg, इम्पेयर्ड परफ्यूजन, इस्कीमिया, पेन। कंपार्टमेंट सिंड्रोम typically seen in closed lower limb injuries due to collection of blood, okay. Clinical features of compartment syndrome: severe pain, pain on passive stretching of affected compartment muscle, okay. Distal sensory disturbances, absence of distal pulses, pulselessness, ये लेट साइन है। व्हाट इज़ द लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम? पल्सलेसनेस, ओके। पैरालिसिस वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। अगर पैरालिसिस है तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। चलो, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का? फैसियोटमी करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, फैसियोटमी। इंडिकेशन फॉर फैसियोटमी इफ़ कंपार्टमेंट प्रेशर इज मोर देन 30 mmHg, ठीक है। फैसियोटमी कब करेंगे? जब कंपार्टमेंट प्रेशर कब है? 30 कितना है? 30 mmHg से ज़्यादा है। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम आर प्रेजेंट, ठीक है। फैसियोटमी का इंडिकेशन क्या है? जब कंपार्टमेंट प्रेशर मोर देन 30 mmHg, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रेजेंट। प्रोसीजर क्या है? कैसे करते हैं फैसियोटमी? 2 लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन शुड बी गिवन, 2 लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देते हैं, ठीक है। वन ऑन द मीडियल एंड अदर ऑन द लेटरल साइड, एक मीडियल साइड पे, एक लेटरल साइड पे, ओके। इंसाइज लेयर्स आर, कौन कौन सा लेयर इंसाइज करते हैं फैसियोटमी में? स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और फैसिया, ठीक है। कौन कौन सा लेयर इंसाइज करते हैं फैसियोटमी में? स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और फैसिया। आफ्टर इंसिजन मसल शुड बी बल्जिंग थ्रू द फैसिया, जब इंसाइज कर देंगे तो मसल बाहर आएगा फैसिया के थ्रू, ठीक है, ओके। टिश्यू नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर। मोस्ट कॉमन साइट क्या है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का? इशियम, ग्रेटर प्रोकैंटर, सैक्रम, हील, मेलियोलस, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है भाई। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? इशियम, ग्रेटर प्रोकैंटर, सैक्रम, हील, मेलियोलस। मेलियोलस में लेटरल मेलियोलस, मीडियल मेलियोलस, फिर ओसिपिट, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर सोर या फिर प्रेशर अल्सर पे। स्टेज 1
नॉन ब्लैंकेबल इरिथीमा ऑफ स्किन विदाउट ब्रीच इन एपिडर्मिस, ठीक है। नॉन ब्लैंकेबल इरिथीमा प्रेजेंट होता है। अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, स्टेज 1 अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, इरिथीमा ऑफ स्किन, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी स्टेडियम होम मिनिस्टर ऑफिस, ओके। मोस्ट कॉमन साइट जो था ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, उसके लिए निमोनिक है इंदिरा गांधी स्टेडियम होम मिनिस्टर ऑफिस। आई फॉर इस्कियम, जी फॉर ग्रेटर प्रोकेंटर, एस फॉर सैक्रम, एच फॉर हील, एम फॉर मेल्यूलस लैटरल मेड्यूलस, फिर मीडियल मेल्यूलस, ओ फॉर ऑक्सीपुट, ओके। चलो ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है भाई, सब समझ में आ रहा है। स्टेज 2, स्टेज 1 था, ओके। स्टेज 2 है। पार्शियल थिकनेस इंक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्टेज 1 में क्या इंक्लूड होगा? एडिमा ऑफ स्किन, ठीक है। स्टेज 2 में क्या है? एपिडर्मिस और डर्मिस, लेट सुपरफिशियल अल्सर। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं? लेट सुपरफिशियल अल्सर। स्टेज 3 में क्या है? अर्ली डीप अल्सर, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू, फुल थिकनेस ऑफ स्किन, ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू बट नॉट थ्रू द अंडरलाइंग फेसिया। अंडरलाइंग फेसिया इन्वॉल्व नहीं होगा स्टेज 3 में। स्टेज 4 में स्किन हो जाएगा, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल बोन, जॉइंट सब इन्वॉल्व हो जाएगा, लेट डीप अल्सर। स्टेज 3 को अर्ली डीप अल्सर बोलेंगे, स्टेज 4 को लेट डीप अल्सर बोलेंगे। चलो एक बार दोबारा समराइज करते हैं। स्टेज 1 हो जाएगा अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, इसमें बस इरिथीमा ऑफ स्किन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। स्टेज 2 हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या? लेट सुपरफिशियल अल्सर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इरिथीमा ऑफ स्किन एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है। स्टेज 3 में क्या इन्वॉल्व होगा? इरिथीमा ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अब इसका फुल नेम होता है, लाइक स्टेज 3 को बोलते हैं अर्ली डीप अल्सर, स्टेज 4 को बोलते हैं लेट डीप अल्सर। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? चारों स्ट्रक्चर, इरिथीमा ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल बोन, जो भी है सब, ठीक है। वो स्टेज 4 हो जाएगा, लेट डीप अल्सर। अब मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर को कैसे मैनेज करते हैं? गुड स्किन केयर करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ स्पेशल प्रेशर डिस्पर्सन क्वेश्चन, स्पेशल प्रेशर डिस्पर्सन क्वेश्चन यूज़ करेंगे या फिर फॉर्म से यूज़ करेंगे। यूज ऑफ लो एयर लॉस एंड एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स, ठीक है। यूरिनरी एंड फिकल डाइवर्सन इफ रिक्वायर्ड। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन केस ऑफ बेड बाउंड पेशेंट शुड बी टर्न एटलीस्ट एवरी 2 आवर्ली। बेड बाउंड पेशेंट में हर 2 घंटे में पेशेंट को मूव करना होता है, ठीक है। व्हील चेयर बाउंड पेशेंट को क्या करते हैं? पेशेंट शुड लिफ्ट देमसेल्स ऑफ देयर सीट एवरी 10 सेकेंड्स फॉर एवरी 10 सेकेंड्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। तो व्हील चेयर वाले पेशेंट को 10 सेकंड के लिए उठना पड़ता है हमेशा, हर 10 मिनट के बाद, और बेड बाउंड पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद टर्न करना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैप फॉर प्रेशर सोर्स, एक्सटेंसर फैसियाई लेटा फ्लैप विथ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। कौन सा फ्लैप यूज़ करते हैं प्रेशर सोर्स में? एक्सटेंसर फैसियाई लेटा फ्लैप विथ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैप फॉर प्रेशर सोर्स आर एक्सटेंसर फेसियाई लेटा फ्लैप विथ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। चलो ठीक है। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ठीक है, इसमें देख सकते हैं वैक्यूम बना हुआ है, ओके। ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। इसमें कितना प्रेशर होता है? -125 mmHg, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स अ वीक अप्लाई करते हैं। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, -125 mmHg प्रेशर अप्लाई होता है, 2 to 3 टाइम्स अ वीक यूज करते हैं। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर प्रमोट्स वुंड हीलिंग बाई अप्लाइंग ए वैक्यूम थ्रू स्पेशल सील ड्रेसिंग होता है। कंटिन्यूड वैक्यूम बाई नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, it draws out excess fluid from the wound, increases blood flow to the area। चलो ठीक है। वैक्यूम कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, ओके।
प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी causes macro deformation. Negative pressure wound therapy causes macro deformation, draw wound edges together. ठीक है, इससे क्या होता है, जो wound edges हैं साथ में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हेल्प इन wound edge approximation, so stabilization of wound environment. By protecting the wound from outside microorganism, provide a warm and moist environment for wound. ठीक है, नेगेटिव प्रेशर wound therapy का एडवांटेज देख रहे हैं हम लोग. मैक्रो डिफॉर्मेशन होता है, मैक्रो डिफॉर्मेशन, स्टेबलाइजिंग ऑफ wound environment. चलो ठीक है. रिड्यूसेस एडिमा, एडिमा को रिड्यूस करता है नेगेटिव प्रेशर wound therapy. ठीक है. एंड माइक्रो डिफॉर्मेशन लीडिंग टू सेलुलर प्रोलिफरेशन एट द wound surface. अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी. नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, इसका निमोनिक है मुन्ना. क्या निमोनिक है, मुन्ना. कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी क्या है, मुन्ना. एम फॉर मैलिग्नेंसी इन द wound, अगर wound में मैलिग्नेंसी है तो नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे. अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस में नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे. नॉन इंटेरिक एंड अनड्रेन फिस्टुला, इसमें भी प्रेशर यूज़ नहीं करेंगे. टी फॉर मुन्ना एंड ए फॉर है नेक्रोटिक टिश्यू स्कर. ठीक है, इसमें भी नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे. नेगेटिव प्रेशर wound थेरेपी कहाँ यूज नहीं करेंगे, इसका निमोनिक है मुन्ना. मुन्ना कहाँ यूज नहीं करेंगे, मुन्ना. ठीक है. एम फॉर मैलिग्नेंसी इन द wound, ओ फॉर यू फॉर अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस, एन फॉर नॉन इंटेरिक एंड अनड्रेन फिस्टुला, एक और एन फॉर है नेक्रोटिक टिश्यू स्कर. ठीक है. अब स्कार क्या होता है, तो मैचुरेशन फेज ऑफ हीलिंग में डिले हो जाता है. ठीक है. स्कार में क्या है, मैचुरेशन फेज ऑफ wound हीलिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार. हम लोग इधर क्या पढ़े थे, हम लोग इधर पढ़े थे क्रॉनिक wound में कौन सा इन्फ्लेमेटरी फेज ऑफ wound हीलिंग में डिले होता है. ठीक है, क्रॉनिक wound में इन्फ्लेमेटरी फेज ऑफ wound हीलिंग में डिले होता है. लेकिन स्कार में क्या है, मैचुरेशन फेज ऑफ wound हीलिंग में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से स्कार बनता है. ठीक है. मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 12 वीक्स 3 मंथ्स पोस्ट इंजरी. ओके. मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कब गेन करते हैं, 3 महीने के बाद, और 80% अनइंजर्ड स्किन. ठीक है, 80% ऑफ अनइंजर्ड स्किन, लाइक जितना पहले था उसका 80% ही गेन हो पाता है. स्कार में क्या है, मैचुरेशन फेज ऑफ wound हीलिंग की वजह से होता है स्कार का फॉर्मेशन. और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ स्कार का होता है 12 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ अनइंजर्ड स्किन. ठीक है. टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड. एबनॉर्मल स्कार 2 टाइप के होते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड. पहले हम लोग हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में देखेंगे. हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या होता है, एक्सेसिव स्कार टिश्यू. हाइपरट्रॉफिक स्कार में एक्सेसिव स्कार टिश्यू होते हैं. स्कार डजंट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द ओरिजिनल wound इंसिजन. हम लोग देख सकते हैं स्कार जो है अपने बाउंड्री में ही है, इसके आगे नहीं गया. रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज. हाइपरट्रॉफिक स्कार इज रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज. अनफेवरेबल स्कार साइटिंग अक्रॉस टेंशन लाइन्स. ओके. ऑन हिस्टोलॉजी में हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या दिखेगा, हिस्टोलॉजी पे एक्सेस कोलेजन, हाइपरवैस्कुलैरिटी, वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स. हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या दिखेगा, हिस्टोलॉजी पे एक्सेस कोलेजन, हाइपरवैस्कुलैरिटी, वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप 3 कोलेजन. ठीक है. अब मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार का. तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव स्पॉन्टेनियसली विथ टाइम. कुछ नहीं करते हैं मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, ये खुद से ही सही हो जाता है. फॉर ऑनगोइंग हाइपरट्रॉफी इन द स्कार, इंट्रालीशनल स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं. ठीक है. इंट्रालीशनल स्टेरॉइड क्या है, ट्राइमसिनोलोन. ठीक है. इंट्रालीशनल स्टेरॉइड ट्राइमसिनोलोन यूज़ करते हैं अगर खुद से ठीक नहीं हुआ तो. इफ़ स्कार परसिस्ट आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद भी स्कार है तो सर्जिकल एक्ससिजन करते हैं और प्राइमरी क्लोजर ऑफ द wound करते हैं. ठीक है. हाइपरट्रॉफिक स्कार क्लियर है. 1 साल के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ हाइपरट्रॉफिक स्कार तो सर्जिकल एक्ससिजन करते हैं और प्राइमरी क्लोजर ऑफ wound कर देते हैं. ठीक है. अब किलॉइड होता है. हम लोग 2 टाइप का स्कार देख रहे थे, पहला हो गया हाइपरट्रॉफिक स्कार, दूसरा है किलॉइड. किलॉइड में क्या है भाई, एक्सेसिव स्कार टिश्यू हो जाता है. ठीक है. किलॉइड में क्या है, एक्सेसिव स्कार टिश्यू हो जाती है. देखो, स्कार एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल wound और इंसिजन. किलॉइड में क्या है,
अपने इसका जो ओरिजिनल उंड है उससे एक्सटेंड हो जाता है. एसोसिएटेड विथ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ growth factors. Keloid is associated with elevated levels of growth factors, deeply pigmented skin, genetic predisposition. Sternum is the most common site of keloid. Keloid का most common site क्या है? Sternum. ठीक है. Keloid is especially seen in the triangular region with bondage of each shoulder tip and Cephi sternum. Keloid is seen in the triangular region of both shoulder tips and Cephi sternum. Cephi sternum, okay. Cephi sternum देखने को मिलता है. चलो भाई सही है. हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा? कोलेजन एंड हाइपरवेस्कुलरिटी. क्या देखने को मिलेगा हिस्टोलॉजी में? कोलेजन एंड हाइपरवेस्कुलरिटी. ओके. कंटेंस डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन. कीलॉइड में टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन होता है. हाइपरट्रोफिक स्कार में सिर्फ टाइप 3 कोलेजन होता है. अब ट्रीटमेंट क्या है कीलॉइड का? रेयरली रिग्रेसेस विथ टाइम. हम लोगों ने क्या देखा था? स्कार जो है खुद से ही सही हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम बारी खुद से सही होता है. ऑफन रिफ्रैक्टेड टू मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है केलॉइड का? सिलिकॉन सीट है. केलॉइड में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? सिलिकॉन सीट प्लस प्रेशर थेरेपी प्लस इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्रायमसिनोलोन. ओके. ट्रायमसिनोलोन का इंजेक्शन देते हैं केलॉइड में. रिफ्रैक्टिव केसेस में क्या है? एक्सीजन करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी देते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी या ब्रैकीथेरेपी. ट्रीटमेंट क्या है केलॉइड का? तो बहुत कम बारी ही खुद से रिग्रेस होता है. लाइक रेयरली रिग्रेसेस विथ टाइम. केलॉइड रेयरली रिग्रेसेस विथ टाइम. तो हम लोग इसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सिलिकॉन सीट देते हैं, प्रेशर थेरेपी और इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्रायमसिनोलोन. ठीक है. रिफ्रैक्टिव केसेस में क्या करते हैं? एक्सीजन प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी या ब्रैकीथेरेपी. ब्रैकीथेरेपी इज गिवन फॉर केलॉइड. ओके चलो ठीक है. चलो